Good morning, all of you. Today we are going to continue the chapter. What is the name of the chapter? Yes, tertiary and quaternary activities or sector. So in that we were studying about first of all we have completed number of topics like the meaning of tertiary activities. Then different types of you have studied about a flow chart in which different types of tertiary activities were given. Can anyone tell me about the different types of tertiary activities? Raise your hand. What are the different categories of tertiary activities? Yes, Nandini. Trade and commission. Trade and commerce. वाणिज्य and व्यापार and वाणिज्य. Then second, transportation यातायात. Then what else? Services सेवाएं. And then what is the last one? आपने तीनों अच्छे बताए, काफी अपने जो है जो टॉपिक्स आपने बता दिए. तो लास्ट वन इज यस, आप बताइए. संचार. सो ये किसी भी बच्चे को भूलना नहीं है. अब आप मुझे चारों बताइए नाम. आपका क्या नाम है? टीशा. हाँ टीशा बताइए. आप 12th लेवल पे हैं और अभी एक बच्चे ने रिपीट किया है कि ये चीज़ें 4 टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़ है. क्या आपके पास इतना दिमाग मेमोरी नहीं कि आप उन चारों चीज़ों को एक बार में बता पाएँ बिना हिचकिचाए, बिना फंबलिंग के? आप बताइए. ट्रेड एंड कॉमर्स. यही एज इट इज एग्जाम में आएगा. फिर आपका टर्शरी एक्टिविटीज के ऊपर 5 मार्क्स का आ गया. अगर मान लो इनकेस जो भी टर्म 2 होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि किस जो है एक्टिविटी का पार्ट है. आप बताइए. आप व्हाट्स योर नेम? अभय. यस अभय. व्हाट आर द डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज? यस. एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन यातायात के साधन क्या आप इस्तेमाल नहीं करते हैं? दैट इज पार्ट ऑफ द टर्शरी एक्टिविटी. देन ट्रेड एंड कॉमर्स, जो भी व्यापार वाणिज्य है वो भी आपका टर्शरी एक्टिविटीज का पार्ट है. कम्युनिकेशन संचार, जो भी हम लोग मीन्स यूज करते हैं टू कम्युनिकेट आवर मैसेजेस और टू जो भी हम लोग अपनी बातों को बताना चाहें. एंड देन आपका लास्ट क्या है? सर्विसेज. सर्विसेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, whether you are availing educational service, hospital services, hospitality service, any tourism service. So these are the 4 categories of tertiary activities. ये आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए कि कौन tertiary activities कितने तरह की होती हैं. Now अब इन्हीं activities को हम डिटेल में पढ़ेंगे. So first we had started about trade and commerce, which I have already we have gone through this topic. In this we had studied about buying and selling. Buying and selling means trade, and at the place where it takes place is known as market area. This is just a recapitulation. I'm not teaching you because we have completed this topic in the previous class only. So trading centers. What are trading centers? The places where buying and selling of goods takes place at a high scale or at a large scale. All right. So there are certain areas in any state or in any country which are famous as market areas, where wholesale trading or different types of trading activities takes place at a large scale. So उसको हम उसी नाम से जानते हैं. I had given you example of Saharanpur, which is famous for cloth, different types of clothes. So there are certain areas, they are known as trading centers. Then we have gone through 3 types of trading centers. One was rural marketing center, then the urban marketing centers, and periodic markets in rural areas. So many times this comes in the examination. So go through all these topics very carefully. I will take your test anytime of any chapter. Whether it's I will take test of this chapter or जो मैंने इससे पहले पढ़ा है, मैं किसी का भी आपसे पूछ सकती हूँ.
ठीक है, तो ये सबको मालूम होना चाहिए कि तीनों सेंटर्स कौन से होते हैं. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट द टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम्स. ट्रेडिंग, व्यापार जो होता है उसका सिस्टम क्या होता है. फर्स्ट वन इज योर रिटेल ट्रेडिंग एंड द अदर इज योर होलसेल ट्रेडिंग. ये सब आप यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस टॉपिक. लाइक फुटकर व्यापार सुना है आपने, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार. बेसिक डिफरेंस क्या होता है थोक और फुटकर में, कोई जानता है? होलसेल ट्रेडिंग और जैसे रिटेल ट्रेडिंग. यस, बता रही हूँ. ओके, कम रेट में मिलता है, ज्यादा सामान मिलता है ना. अगर आप फॉर एग्जांपल आप सुना कि थोक मंडी है, सब्जी मंडी है, तो मंडी मतलब ए मंडी इज ए पार्ट ऑफ योर होलसेल ट्रेडिंग. जो आपकी शॉप्स हैं, सिट डाउन, वेरी गुड. ये जो शॉप्स हैं आपकी, ये क्या है? देयर एग्जांपल्स ऑफ रिटेल ट्रेडिंग. जो ठेला फेरी वाला आ रहा है आपके घर में, या जो वेंडर्स आ रहे हैं, या फिर आप जो शॉप्स पे जा रहे हो, दे आर पार्ट ऑफ रिटेल ट्रेडिंग. वो आपको फुटकर में सामान देते हैं. आप चाहे तो उनसे एक बिस्किट खरीद लो, आप उनसे एक पैकेट ब्रेड खरीद लो, आप उनसे 1 किलो आटा खरीद लो, हाफ किलो आप आटा खरीद लो, या जो भी चाहिए आपको, आप कम से लेके हाई क्वांटिटी तक आप उनसे परचेज कर सकते हो. आपको एक पाव भी दे देंगे, 500 ग्राम्स दे देंगे, जो है आधा किलो दे देंगे. लेकिन आप जब थोक मंडी में जाओगे, थोक मार्केट में जाओगे, तो वहां पे अगर आपको कपड़ा लेना है तो आप उनसे बोलो कि मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए. तो वो आपको, जैसे सहारनपुर फेमस है होलसेल ट्रेडिंग के लिए कपड़ों के, आप वहां जाओगे तो आप एक पीस खरीदोगे तो आपको एक पीस में कोई बेनिफिट नहीं होगा ना, वो आपको बेचेंगे. वो अगर आपको कोई भी चीज लेनी है, कोई भी पीस लेना है आपको, तो आप फिर उनसे हाई क्वांटिटी में लेंगे, तब वो आपको बेचेंगे. और क्योंकि जब वो हाई क्वांटिटी में आपको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसका रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है. आप जो ठेले वाले आते हैं, फेरी वाले आते हैं, या आप जो मार्केट्स में जाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आप 1 किलो आलू ले रहे हो या 2 किलो आलू ले रहे हो, तो उसका रेट आपका एज इट इज रहेगा. लेकिन जब आप मंडी में जाओगे, जो आलू की मंडी है, जो सब्जी मंडी होती है, तो वहां पे आप अगर मान लो 10 किलो आलू ले रहे हो, 5 केजीज आप आलू वहां से खरीद रहे हो, टमाटर, जो भी सब्जियां ले रहे हो, तो उसका रेट क्या होता है? ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि आप वहां पे ज्यादा सामान खरीद रहे हो. तो होलसेल मीन्स आपको बल्क में सामान बेचा जाता है और उसका प्राइस भी थोड़ा सा कम होता है. और जो रिटेल ट्रेडिंग होती है उसमें आपको कुछ थोड़े बहुत सामान बेचे जाते हैं और आप उसमें कितनी भी अमाउंट में चीजों को खरीद सकते हो. ठीक है ना. अब इसका डिफरेंस हम देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके एग्जाम में आता ही है. दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स. So shopkeepers, your vendors, they are coming directly to your home, और आप डायरेक्टली उन तक उनके पास जा रहे हो. आपके घर में कुछ खत्म हो तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं जाओ यहाँ से आटा ले आओ, चावल लेके आ जाओ, तो आप शॉप्स में जाते हो और वो शॉपकीपर आपको डायरेक्टली सेल कर देता है. मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट. एक फिक्स शॉप होती है, फिक्स एस्टैब्लिशमेंट होता है, चाहे वो आपका वो एक किसी भी तरह का एक झोपड़ा लगा के वो सामान आपसे बेचे, या वो एक छोटा सा रूम लेके आपसे सामान बेच रहे हैं, या बड़ा एक एस्टैब्लिशमेंट है, तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो फिक्स होता है. और स्टोर्स सोली डिवोटेड टू सेलिंग. स्ट्रीट पैडलिंग, अब एग्जांपल्स क्या है देख लीजिए. स्ट्रीट पैडलिंग, हैंड कार्ट्स. स्ट्रीट पैडलिंग कौन होता है? जो आपकी सड़कों पे घूम घूम कर बेचते हैं. हैंड कार्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर सर्विसेज अगर आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है, या मेल ऑर्डर, ये भी एक पार्ट का रिटेल ट्रेडिंग है, क्योंकि आपके घर तक चीजों को पहुंचाया जा रहा है. टेलीफोन, देन ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स एंड इंटरनेट आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग. ये सब है रिटेल ट्रेडिंग के अंदर ही. अब इसमें थोड़ा सा नॉन स्टोर रिटेल, मतलब जैसे आपका इंटरनेट है ना, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है, इसमें आपको किसी दुकान पे नहीं जाना है, आपको इसमें कोई बेचने वाला नहीं होता. आप कई मशीन आपने कभी देखे कि आप स्पेशली जो आप किसी रेलवे स्टेशन जाओगे, या कहीं ये जो आपके जहाँ पे एरोप्लेन उड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, एयरपोर्ट्स, तो या फिर कहीं भी हाइट बड़ी सिटी में जाओगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन लगी होती है, और वहाँ पे आप पैसे डालिए और जो आपको चाहिए वो आपके सामने आ जाता है, होता है ना. तो उसे कहते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन. स्पेशली ये आपके जो चिप्स होते हैं, या फिर जो आपके जो बेवरेजेस होते हैं, है ना, कोका कोला, ये सब जो चीजें होती हैं उनके लिए होते हैं. देन आपका इंटरनेट हो गया. इंटरनेट से भी आप बहुत शॉपिंग करते हो, कुछ सामान मंगाते हो, तो वो आपका मेल ऑर्डर हो गया, टेलीफोन हो गया. ये सब क्या है कि हर आदमी के पास इंडिविजुअल प्रेजेंट है और ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिटेल ट्रेडिंग. और इसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आपको घर पे ही अवेलेबल हो जाता है. नेक्स्ट है आपका होलसेल ट्रेडिंग. होलसेल ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स बल्क बिजनेस. बल्क बिजनेस मतलब हाँ, जो भी आपको ट्रेडर्स आपसे व्यापार कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो आपको कम सामान नहीं देते हैं. दे विल ऑलवेज सेल यू बल्क
आइटम, चाहे वो कोई भी चीज हो, थ्रू न्यूमरस इंटरमीडियरी मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेज एंड नॉट थ्रू रिटेल स्टोर्स। अब जैसे मंडी है, तो मंडी कोई ऐसा नहीं है कि उसमें एक पर्टिकुलर शॉपकीपर का है, वो वहां पे बहुत सारी शॉप्स लगेंगी, और जो जहां से भी ये आता है, मान लो पोटैटो है या फिर आप कोई भी आप कपड़ों की दुकान ले लीजिए, तो ये आपका होलसेल ट्रेडिंग जो होता है वो कोई एक इंडिविजुअल नहीं करता है, वहां पे ग्रुप होता है पूरा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें खरीदनी पड़ती है। और ऐसा वहां पे ऐसा भी नहीं होता है कि अच्छा भाई इसने आपको इतने किलो में दे दिया तो आप इतने किलो में आप दूसरे देगा, ऐसा नहीं होता है। होलसेल ट्रेडिंग में जो रेट होता है वो फिक्स होता है, और आप चाहे पूरा जो एक एरिया होता है वो ऑक्यूपाई होता है। जैसे आप किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पे सिर्फ कपड़े हैं, तो वहाँ पे आपको कपड़े ही कपड़े मिलेंगे। तो जो होलसेल ट्रेडिंग होती है वो एक पर्टिकुलर आइटम के लिए होती है, और उसका पूरा एरिया होता है कि यहाँ पे अगर वेजिटेबल मंडी है तो वेजिटेबल मिलेंगे, कपड़े की मार्केट है तो वहाँ पे सिर्फ आपको कपड़े मिलेंगे, और वो भी होलसेल में। Some large stores, including chain stores, are able to buy directly from the manufacturers. अब कुछ चेन स्टोर्स भी होते हैं, जैसे आपने रिलायंस ट्रेंड सुना है, रिलायंस का अपना वेजिटेबल का भी स्टोर हो गया अब तो, है ना, और जगह का आप, अब जैसे पहले क्या था, छोटे छोटे मॉल जिसमें कपड़े आप ये सब देखते थे, लेकिन अब उसी नक्शे कदम में आपको छोटे छोटे मतलब आप ये क्या बोलते हैं, विशाल मेगा मार्ट है ना, मतलब वो डिफरेंट आइटम्स ना बेचकर सिर्फ वो क्या बेचते हैं, आपको पर्टिकुलर आइटम। जैसे रिलायंस फुटप्रिंट हो गया, तो उसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा, फुटवेयर्स। रिलायंस वेजिटेबल हो गया, उसमें सिर्फ क्या मिलता है, सब्जियां। देन रिलायंस कपड़ों का होता है तो उसमें सिर्फ कपड़े मिलेंगे। तो ये जो मैं रिलायंस एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि सबसे आसान, क्योंकि आप अपने आसपास देख सकते हो, तो ये जो इन्हें हम कहते हैं चेन स्टोर्स कहते हैं। अब जैसे रिलायंस की सब्जी जो का एक ये नया ट्रेंड उन्होंने ओपन किया है, तो वो आपको बहुत जगह हाईटेक सिटीज है वहां पे आपको इनका स्टोर मिलेगा। रिलायंस की सब्जी मंडी है, तो वहां पे क्या है कि आप वहां पे आप वहां जाओ, वहां पे सिर्फ आपको सब्जियां मिलेंगी। तो ऐसे आप बेंगलोर जाइए, दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, तो यहाँ पे आपको ऐसे होलसेल के जो चेन स्टोर्स होते हैं वो काफी सारे मिल जाते हैं। और ये जो चेन स्टोर्स होते हैं वो डायरेक्टली किससे खरीदते हैं, फ्रॉम द सप्लायर, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। जैसे मान लो फार्मर है, तो फार्मर से डायरेक्टली खरीद, उन्होंने क्या कर दिया, अपने चेन स्टोर में सेल करना शुरू कर दिया। तो जो बनाते हैं उनसे वो थोक में खरीदते हैं, और थोक में खरीदने के बाद वो फिर किसको बेचते हैं, कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो ये चेन स्टोर्स का जो है एक नया कॉन्सेप्ट आया है। Wholesalers often extend credit to retail stores to such an extent that a retailer operates very largely on the wholesaler's capital. इतना important नहीं। Then next है हमारा ट्रांसपोर्ट। Now what is transport? ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हो। तो पहली चीज हमने क्या कवर कर ली है, ट्रेड एंड कॉमर्स। ये टर्शरी एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट था, ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें मैंने आपको ट्रेडिंग सेंटर्स बताए, अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स एंड वीकली मार्केट्स। ठीक है, देन हमने पढ़ा है रिटेल ट्रेडिंग के बारे में एंड होलसेल ट्रेडिंग के बारे में। देन अब ये हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन। ना हाउ ट्रांसपोर्टेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेजरी एक्टिविटीज, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में क्या होता है। तो क्वेश्चन वो आपसे कुछ भी घुमा के पूछते हैं, लाइक व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आता है, और सर्विसेज जो से बाद में पढ़ेंगे सर्विसेज, उसके ऊपर कई बार चुका है 5 नंबर का क्वेश्चन। नाउ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, यातायात क्या होता है बताइए जरा, बहुत बेसिक चीज आप लोग सुनते रहते हो ना, कैसे आप बताओगे, दीपिका बताओ। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है। चलिए, करेक्ट आपने बताया, और कोई बताना चाहेगा। यस, आपका क्या नाम है, साक्षी। हाँ साक्षी बताओ, सिट डाउन। दीपिका। उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके बाद उसे शॉप्स पर जब कस्टमर के पहुंचाया। ओके, तो आप जो बताना चाह रही हो, आप जो आप इन्होंने पढ़ा है कि ट्रांसपोर्टेशन इज यूजफुल फॉर सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम इंडस्ट्री टू द मार्केट, जो भी फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो दैट इज आई एम आस्किंग व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। आपने उसकी यूजफुलनेस बता दी, बट अगर आपको ये वर्ड डिफाइन करना हो कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे। यस राजन, आप बताइए, यातायात क्या है। क्या आप लोग यातायात का यूज करते हो अपनी लाइफ में।
यस, यस, करेक्ट। आप घर से स्कूल कैसे आते हो? तो चलिए, आपके जो पैर हैं वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये भी हम कह सकते हैं। आप पैदल कहीं जाते हो, आप साइकिल का यूज करते हो, आप बाइक का यूज करते हो, कार का यूज करते हो, आप बुलक कार्ट का यूज करते हो, है ना। देन आप जो है एयरप्लेन का यूज करते हो, आप ट्रेन का यूज करते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड द नेचर ऑफ जर्नी। ठीक है। सो व्हाट आर दीज थिंग्स जिनके भी मैंने नाम लिए, वो क्या है? दे आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दे आर द मीडियम, दे आर द मीडियम। सो बेसिकली व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? इट इज अ सर्विस। आपको कई चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक सेवा होती है। इट इज अ सर्विस which helps people and good, which helps in the movement of the passenger and goods from one place to another। बहुत आसान नहीं है ये। तो यातायात क्या है? इट इज एक तरह की सेवा है जिसमें लोग और जो हमारे गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तब आप बताओगे मोड्स कौन कौन से होते हैं? लैंड, एयर एंड वाटर। ठीक है। सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो भी इंडस्ट्रियल वर्क होता है, इसके बिना ट्रांसपोर्टेशन के विदाउट पॉसिबल नहीं है। So before establishing any industry, the entrepreneur or the government, first of all, they create a total infrastructure in that area। Infrastructure क्या होता है? Infrastructure means construction of roads, railway lines, कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बाय बिकॉज उनके बिना जो है कच्चा माल ना इंडस्ट्री तक आएगा, ना तैयार माल मार्केट तक जा सकता है। ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? इट इज अ सर्विस और फैसिलिटी बाय विच पीपल, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू दी अदर। हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी तो मूव करते हैं इधर से उधर। देन मटेरियल भी जाता है एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मेंस बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी। ये बहुत बेसिक चीजें जो आप जानते हो। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा उद्योग है। आपको पता है ना, जो बसेस चलती हैं, प्राइवेट बसेस चलती हैं या गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं। इनफैक्ट रेलवे क्या है? इट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट रेलवे इन एशिया और सबसे हाईएस्ट अर्नर है सरकारी। अगर हम उसमें देखें इंडस्ट्रीज में, रेलवे क्या है? इट इज इंडस्ट्री, हमारे सरकार के कमाने का जरिया है। और जानते हो आप कितना ज्यादा अधिक इसको यूज किया जाता है भारत में, भारत जैसे देश में। तो सबसे अधिक इनकम जनरेटर है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है। तो मतलब आप सोचिए कि जो ये एक इंडस्ट्री है जिससे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट काफी इनकम अर्न करती है, रेवेन्यू अर्न करती है। एंड इसको क्रिएट क्यों किया गया? ताकि जो इंसान की बेसिक नीड है, क्योंकि हम एक जगह पे बैठ के रह सकते हैं क्या? वो भी आज के टाइम में मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पूरे विश्व में अगर इतना डेवलपमेंट हुआ है तो वो तभी हुआ है जब इंसान ने मूव करना स्टार्ट किया। जब हमारे पास बैलगाड़ी थी तब आप, या फिर हमारे पास उससे भी हम पिछड़े हुए थे, तो देखिए मतलब इतना लोगों का मेल मिलाव नहीं था, है ना। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब से सैटेलाइट वाली चीजें आई हैं, जब से हमारा मोबाइल पे बैठे बैठे हम कहीं से भी किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी ईमेल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तभी जो है पूरा वर्ल्ड जो है आज एक गांव की तरह बन गया है। आप यहाँ बैठे बैठे अलास्का में बैठे हुए आदमी से भी आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। बात कर से पहले पॉसिबल था क्या? हम लोगों ने वो टाइम देखा जब हमारे पेरेंट्स जो है कहीं जैसे आर्मी में, तो अरुणाचल में है या जम्मू कश्मीर में, तो हम एक एक महीने नहीं बात कर पाते थे। वो कहीं और फोन आ रहा है लैंडलाइन पे, तो वहां जाओ वेट करो, है ना। तो वो सिचुएशन भी थी कि आप मतलब बात नहीं कर सकते हो अपने घर में, कहाँ पे है कुछ पता नहीं। ये एक एक महीने तक पता नहीं चलता कहाँ पे कौन आदमी है। लेकिन आज आप बताओ, आप कहीं भी हो, हिमालय में कहीं भी हो, आप आराम से कहीं से भी बात जो है आराम से बात कर सकते हो। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग जो हमारा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम डेवलप हुआ है। देन at every stage in complex system, the value of the material is significantly enhanced by the transportation। Transport distance can be measured as kilometer distance और time distance। ठीक है। जब भी हम ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम उसको किस तरह से मेजर करते हैं? या तो हम किलोमीटर में होता है ना कि अच्छा मुझे यहाँ से लखनऊ जाना है, तो भाई लखनऊ कितना दो तरीके से हम उसकी डिस्टेंस पता करते हैं। पहले कैसे पता करेंगे? किलोमीटर, कि यहाँ से लखनऊ जो है 550 किलोमीटर है। अच्छा बहुत दूर है भाई 550 किलोमीटर तो, है ना। फिर हम एक इस तरह से भी बोल सकते हैं कि कितना टाइम डिस्टेंस है। कभी पूछते ना कि अच्छा लखनऊ जाने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा 8 घंटे लग जाएंगे, 10-12 घंटे लग जाएंगे।
ट्रेन से गए, हम लोग ये सब करते हैं ना सर, जब हमें कहीं जाना होता तो हम सर्च करते हैं कि भाई हम रेलवे से जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। अब आपको यहाँ से साउथ इंडिया जाना है तो सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा? आप उत्तराखंड में हो, आपको केरल जाना, आप कैसे जाना प्रेफर करोगे बताओ? बाय एयर, ठीक है, बाय एयर आप यूज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि वहां वो हमसे 3000 किलोमीटर दूर है। तो हम अगर ये सोचे कि हम बस से चले जाएंगे तो बस से तो हमारी हेल्थ जो है, हेल्थ से लेके पूरा हमारा टाइम उसमें चला जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमारे लिए जो है एयरवेज सबसे बेस्ट है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, टाइम डिस्टेंस बहुत लग जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको यहाँ से जाना है हरिद्वार, देहरादून, तो उसके लिए आप एरोप्लेन करोगे तो क्या होगा? फिजिबल होगा? नहीं होगा। उसके लिए आप स्कूटी से लेके आप कार ले जाओ, आप अपना बस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पकड़ के आप जा सकते हो। हमें यहाँ से लखनऊ जाना है, वो मॉडरेट डिस्टेंस पे 550 किलोमीटर, तो उसके लिए कार से जाएंगे तो भी हमारे थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा यार, लेकिन तब भी हम जा सकते हैं क्योंकि वो इतना भी बहुत दूर नहीं है। लेकिन हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा? अब हम एयरप्लेन करेंगे तो क्या होगा? इतना डिस्टेंस भी नहीं है, हमारा खर्चा ज्यादा बैठ जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या हमारे लिए कि हम रेलवे ट्रेन से आराम से जा सकते हैं वन नाइट जर्नी में। तो ये इसको क्या कहते हैं? हम टाइम डिस्टेंस, हम किलोमीटर डिस्टेंस भी देखते हैं, फिर हम देखते हैं टाइम कितना लगेगा, दोनों ही चीज़ों को हम मेजर करते हैं। तो उससे हम बताते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या मतलब क्या खर्चा होगा, क्या हमें मीन्स यूज करना चाहिए, ये सब चीज़ें। नाउ नेक्स्ट जो है कॉस्ट डिस्टेंस भी एक, ठीक है ना। कॉस्ट मतलब क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताई दिया ऑलरेडी कि जब भी हम कहीं जाना प्रेफर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा खर्चा कितना मिनिमम हो किसी चीज में। लेकिन जब हम देखते हैं कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो फिर हम क्या लेते हैं? खर्चा कर ही देते हैं। लेकिन मान लो जिसके पास नहीं पैसे तो क्या करेगा? फिर वो ट्रेन पकड़ के ही जाएगा, भले ही 2 दिन लगे 3 दिन लगे, है ना। तो कॉस्ट डिस्टेंस भी होता है। सो एक्सपेंस कितना खर्चा हो रहा है, जब भी हम कहीं ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं ना, किलोमीटर में देखते हैं, टाइम में देखते हैं और कॉस्ट में देखते हैं। उसी हिसाब से हम अपना जो है जर्नी को प्लान करते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका network and accessibility. As transport system develop, different places are linked together to form a network. So what is a network? Network क्या होता है? When different places are connected with each other through different means of transport, उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स, ठीक है। सबसे ऊपर क्या हो गया आपका? नेटवर्क, उसके नीचे क्या आ गया आपका? नोड एंड लिंक। नोड्स होते हैं, नोड सेंटर पॉइंट्स होते हैं, और जब आप उनको लिंक करते हो तो क्या बन जाता है? नेटवर्क, ठीक है। सो अ नोड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर रूट्स, a point of origin, a point of destination or any sizable town along a route. So node क्या होता है? Node is an important place जहां पे कई रूट्स आके आपस में कन्वर्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इटरसी, इटरसी आपने नाम सुना इसका? एक सिटी है मध्य प्रदेश में। तो वो ट्रांसपोर्टेशन के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल मध्य प्रदेश के सेंटर में है, और वहां से जो भी ट्रेन जाती हैं जिनको नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है, वो उस रेलवे स्टेशन पे जरूर रुकती हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो है मतलब रेलवे रूट्स आके वहां पे कन्वर्ज होते हैं, ठीक है ना। होता नहीं कि जैसे कि अगर आपको मान लो दिल्ली जैसे हमारा है, एक नोडल पॉइंट है, अगर आपको कहीं भी विदेश यात्रा करनी है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? दिल्ली या मुंबई, जो हमारा मेन जहाँ पे हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो वो हमारा क्या है? नोडल सेंटर है। हम चाहें कि हम लखनऊ से डायरेक्ट अमेरिका पहुंच जाए, हम देहरादून से डायरेक्ट अमेरिका पहुंच जाए, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आपको पहले दिल्ली से यहाँ से आना पड़ेगा, दिल्ली या मुंबई, और फिर वहां से आपको आगे जाना पड़ेगा। उसी तरह से आपको यहाँ से जाना है बाय ट्रेन साउथ में, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली। जो भी आपको ट्रेन लेके, क्योंकि आपको ऐसी बहुत ही कम होती है ट्रेनें, ऐसा नहीं कि जो डायरेक्ट आपको पहुंचा दे, लेकिन हर जगह के लिए ट्रेन नहीं बनी है। लेकिन हर जगह की ट्रेन आपको कहाँ से मिलेगी? दिल्ली से, न्यू दिल्ली से, या फिर जो भी ओल्ड दिल्ली है वहाँ के रेलवे स्टेशन से आपको ट्रेन जरूर मिल जाएगी, चाहे आपको नॉर्थ ईस्ट जाना हो चाहे आपको साउथ में जाना हो। दैट इज द नोडल सेंटर। उस तरह से बहुत सारे ऐसे सिटीज होती हैं। अब जैसे आप यहाँ पे हरिद्वार, कोई भी बस आती है तो वो हरिद्वार जरूर रुकेगी, हरिद्वार और देहरादून आपका, दे आर द नोडल सेंटर्स। भले ऋषिकेश ना आए, क्योंकि ऋषिकेश बहुत इंपॉर्टेंट सिटी एज सच नहीं है फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लेकिन कोई भी बस आती है ना, तो वो हरिद्वार या आपका देहरादून जरूर जाती है। दे आर द नोडल सेंटर्स। एवरी रोड दैट जॉइंस टू नोड इज कॉल्ड अ लिंक। लिंक क्या होता है? जब दो प्लेसेस को, जो रोड या जो भी रास्ता उनको जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंक, ठीक है। जो भी मीडियम हो दो प्लेसेस को जोड़ने वाला। तो ये चीजें आती हैं कभी कभी।
नोड भी मैंने देखा है बोर्ड में आ चुका है, नोड है, लिंक, नेटवर्क। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आया? नोड क्या होते हैं? प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारे रूट्स आके आपस में मिलते हैं, और जब ये नोड्स आपस में मर्ज होते हैं, लिंक वो जिससे जिस भी रोड से लिंक होते हैं या रेलवे ट्रैक से लिंक होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिंक। और इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? नेटवर्क। ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, यातायात को प्रभावित करने वाले क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? फर्स्ट इज डिमांड। Demand of transport is influenced by the size of population. The larger the population, the greater is the demand for transport. ठीक है। जैसा डिमांड होगा वैसे ही सप्लाई होगी। अब आपको पता है कि जैसे आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या फिर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो क्या यहाँ से ऊपर आपको रेलवे वो ट्रेन का कुछ मिलेगा क्या, ट्रेन से जाने के लिए? या फिर आपको यहाँ पे एयरपोर्ट्स मिलेंगे? या फिर आपको उत्तराखंड में क्या रेलवे लाइन बहुत डेंस है? नहीं है, क्योंकि आपका माउंटेनियस एरिया है। यहाँ पे बहुत ही कम प्लेन एरिया, बाकी सारा माउंटेन में। तो यहाँ पे टोपोग्राफी की प्रॉब्लम है, कहीं कहीं किसी एरिया में फिजिकल प्रॉब्लम होती है, और कहीं कहीं पॉपुलेशन की भी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे उत्तराखंड है, यहाँ पे इतनी जनसंख्या ही नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश आप जाइए, बिहार जाइए, वेस्ट बंगाल आप जाइए, मध्य प्रदेश, तो यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि डिमांड भी बहुत हाई है ना। अब आप सोचिए करोड़ों मिलियन पॉपुलेशन है आपकी उत्तर प्रदेश में, तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें फिर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी तो उतना डेवलप करना पड़ेगा ना। बसेस चल रही हैं, रेलवे लाइंस चल रही हैं। अब मुंबई, महाराष्ट्र का वो देखिए, महाराष्ट्र में तो इतनी डिमांड है वहाँ पे, तो हमारा बहुत मेट्रो मेगा सिटी हमारी, वहाँ पे रोजगार के साधन भी बहुत ज्यादा, और पॉपुलेशन पूरी भारत से आके बसी हुई है। तो वहाँ पे तो मेन ट्रेन को छोड़कर वहाँ पे लोकल ट्रेन लाइफ लाइन है। सुना है आपने ना मुंबई की लोकल ट्रेन के बारे में? सुना आपने? जैसे हम लोग अगर वहाँ की लोकल ट्रेन, क्योंकि मुंबई अपने आप में, जैसे दिल्ली क्या है, दिल्ली और मुंबई ये ऐसे सिटीज है ना जो ना इतने छोटे हैं और ना बहुत बड़े हैं, मतलब उनका अच्छा खासा साइज है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप यहाँ पे मतलब आसानी से पहुंच जा रहे हो ना, वहां पे आप सोच लो कि एक एक शहर जो है लोग नौकरी करने जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है, समझ लो कि 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर इतना डिस्टेंस वो रोड ट्रेवल करके आना और उनका जाना होता है। उनका जैसे आपने जो भी आपका अब मुझे इतने याद नहीं आ रहे कौन कौन से एरियाज हैं मुंबई में, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ा शहर है। तो वहां पे लोकल ट्रेन के बिना वहां पे काम ही नहीं चल पाएगा, लोग तो कम्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बस तो आप हाल जानते हो, क्योंकि बस जो रोड्स होती है उसमें तो बहुत ट्रैफिक जैम होता है। तो जो आपकी ट्रेन होती हैं वही सबसे सुटेबल होती हैं। दिल्ली में आप ले लीजिए, दिल्ली आपका बहुत बड़ा एक स्टेट नहीं है, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी भी, अब होता है ना कि ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा, लेकिन अपने आप में वो इतना बड़ा शहर है कि वहाँ पे आप ट्रेन, अगर आप सोचिए कि हम बस से 10 किलोमीटर सफर कर लें, तो आपको कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से आपको 1.5 घंटे से कम नहीं लगेगा, क्योंकि इतना रश होता है वहाँ पे, इतना रश है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया फिर? मेट्रो। मेट्रो महाराष्ट्र में भी बना, मुंबई में भी बना हुआ है, लेकिन वहां पर उतनी यूजफुलनेस नहीं जितनी की दिल्ली में, क्योंकि मुंबई में लोग ऑलरेडी क्या यूज कर रहे हैं? लोकल ट्रेन। तो आप वहां पे लोकल ट्रेन से ही लोग कम्यूट करते हैं, डेली का आना जाना, क्योंकि इतना डिस्टेंस है, 200 किलोमीटर वहां पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 200 किलोमीटर जा रहे हैं वो रोज सुबह, या फिर अपने आसपास के एरियाज में जॉब करने जाते हैं। ग्रेटर मुंबई ये बन गया अब तो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आम फैक्टर है वहां के लिए। तो जितना पॉपुलेशन होगा उतना ही डिमांड भी होगी। देन रूट्स depend on the location of cities, towns, villages, industrial centers, and of raw material, pattern of trade between them, nature of the landscape between them, type of climate, and funds available for overcoming obstacles along the length of the route. So अब ये रूट मतलब क्या होता है कि अब ट्रांसपोर्टेशन इस पर भी निर्भर करता है कि आपका शहर किस रूट पर लोकेटेड है, लोकेशन ये भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि ये आपका जो है खुद का एरिया जो है, ये आपको पता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है बेहतर होना चाहिए? वैसे तो हर जगह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है? क्या ये एरिया इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट के लिए, उत्तराखंड के लिए? कैसे लोकेशन में क्या बेनिफिट है ऋषिकेश का, हरिद्वार का? किस लिए फेमस है सिटीज? पिलग्रिमेज के लिए, पिलग्रिमेज है, योगा सेंटर्स हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं हर साल। यहाँ पे इनकम आपके ये उत्तराखंड की कहाँ से होती है? टूरिज्म से तो होती है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज तो है नहीं, एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिश है नहीं, यहाँ पे प्लेन एरियाज है नहीं इतने ज्यादा,
तो मेनली नॉट ओनली इंडियन टूरिस्ट बट फॉरेन टूरिस्ट भी इंडिया में यहाँ पर आते हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश आपका हो गया या हरिद्वार, 2 प्लेसेस हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अगर बेहतर नहीं होगा तो फिर जो आएगा यहाँ पे टूरिस्ट कैसे आएंगे? भाई एक बार आया आदमी देखा कि यहाँ तो बहुत ही खराब सड़कें हैं, यहाँ पे तो फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर यहाँ पे पब्लिक आना बंद कर देगी। क्यों नहीं, बहुत जगह और जगह टूरिज्म डेवलप है, और क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इतना ध्यान ही नहीं दी अपने जो भी पर्टिकुलर टूरिस्ट एरियाज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिलीजियस सेंटीमेंट्स है। अगर यहाँ पे आप रिलीजियस सेंटीमेंट्स हटा दो तो जिस तरह की सड़कों की हालत यहाँ पे पहले थी, अब तो बहुत अच्छी सड़कें बन गई यहाँ की, देखा आप लोगों ने, है ना? जो देहरादून जाती है, जो हरिद्वार जाती है, जो उससे आगे जाती है रुड़की तक, बहुत अच्छी अब पूरा आपका हाईवे फ्लाईओवर्स बन गए, है ना? अब तो ट्रैफिक जैम भी नहीं होता है। ये तो पहले जब मैं स्टार्टिंग में थी 2014 में, तो यहाँ से अगर आपको हरिद्वार जाना है, कभी कभी हमें ट्रेन पकड़नी पड़ती है हरिद्वार से, तो आप मान के चलो सैटरडे का दिन है अगर, तो 3-3 घंटे लग जाते थे ट्रैफिक जैम में। 9 बजे की ट्रेन के लिए हमें निकलना पड़ता था दिन में 3 बजे कि भाई जल्दी पहुंच जाओ लेकिन लेट ना हो। कि आप लोगों ने उस समय देखी थी रोड्स क्या कंडीशन थी। तो वो टूरिज्म के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होता है ना? तो आपके जैसे ये एरियाज हैं, ये टूरिज्म के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सिग्निफिकेंट रूट है जिसको आपको बहुत बेहतर करना चाहिए ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके। लेकिन बहुत इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत स्टेट्स की, ये तो चलो एक है एग्जाम्पल, लेकिन आप यूपी में ले लीजिए, आप बिहार में ले लीजिए, जहाँ बहुत जगह सड़कें बेहतर नहीं बनाई गई है, लेकिन अब स्टेट्स काम कर रहे हैं। अब तो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना? उसी तरह से मान लो कोई ऐसा शहर है जमशेदपुर है, या फिर आपका और भी कोई इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फेमस है, तो वहां पे जरूर आपको हाईवे मिलेगा। क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो भी हमारे सिटीज, क्यों अभी सरकार ने इतनी बेहतर सड़कें बना दी यहाँ पर, इस सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है, उन्हें पता है कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर टूरिज्म पर्पज। तो जो भी हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज होती हैं फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे वहाँ या तो वो बहुत मेगा सिटी होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, तो वहाँ पे हमेशा बेहतर सड़कें बनी आपको मिलेंगी। वो रूट्स पे डिपेंड करता है कि किस रूट पर, किस लोकेशन पे वो सिटी लोकेटेड है। अब जो इंटीरियर में है वहाँ पर आप देखिए तो कच्ची सड़कें मिलेंगी आपको, है ना? सो दीज आर द 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन network. First is demand. Demand depends upon population. More the population, more will be the demand for transport, modes of transportation. And second is routes. Routes मतलब routes depend upon the location of cities, या cities की importance कितनी है, क्या significance है उस शहर का, तो उस हिसाब से वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट डेवलप किया जाता है। देन नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने ट्रांसपोर्ट जो है कवर किया, रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग कवर किया, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट हमने कवर किया है। तो बिफोर वाइंडिंग अप आई विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस। जिस बच्चे को आंसर आता है वो आप मुझे बताएंगे। चलिए ज्योति आप मुझे बताइए, व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट ट्रांसपोर्ट? यातायात को प्रभावित करने वाले 2 इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं उनका नाम बताइए। अभी तो मैं वही तो बता रही थी आपको चीजें, डिमांड एंड रूट्स, सही बताया इन्होंने। सो डिमांड एंड रूट्स आर द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। डिमांड किसके ऊपर डिपेंडेंट है ज्योति? पॉपुलेशन। एंड रूट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? यस दिवांश आप बताइए। यस, लोकेशन ऑफ सिटीज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिटी। सिट डाउन ज्योति, वेरी गुड। देन नेक्स्ट आप बताइए ईशा। different types of what are the different ways through which we can measure transport distance? ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर हमें डिस्टेंस को मेजर करना होता तो हम क्या 3 तरीके यूज करते हैं? किलोमीटर, सही कहा आपने, और क्या? किलोमीटर, टाइम और फ्लावर, लागत मतलब कॉस्ट। ओके, तो किलोमीटर, टाइम एंड कॉस्ट, डिस्टेंस। ठीक है, आप बताइए नंदिनी। सेम क्वेश्चन है आपका। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? जब क्लास में डिस्कशन हो रहा तो आपकी आंख दिमाग बंद कर रखा था आपने? बताओ। ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड थ्रू
वेरी गुड. एंड यस, और कॉस्ट. तो आप धीरे धीरे क्यों बता रही हैं, मतलब मैं पूछूंगी कि करके तब आप बताएंगी. नज़ाकत के साथ आप बता रही हैं. वेरी गुड. सिट डाउन. देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन. The important places where number of routes converge are known as dash. आप बताइए, जो नंदिनी के पीछे बच्ची, वो इनका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? भूमिका. हाँ भूमिका बताओ. A meeting point or a place where number of routes converge, they are known as. वेरी गुड. क्या कहते हैं? नोड्स. NODES. दो नोड्स को जो भी रूट्स आपस में कनेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिंक. यस. और डिफरेंट लिंक्स जो होते हैं उन्हें हम एक साथ कलेक्टिवली क्या कहते हैं? नेटवर्क. करेक्ट करेक्ट. वो शॉप्स या वो स्टोर्स जो कि मर्चेंडाइज जो है उसे खरीदते हैं और बल्क में सामान खरीद कर उसे बेचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चेन स्टोर्स. देखिए आपके इसमें दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना. मोर ऑन स्टोर्स, चेन स्टोर्स कहा जाता है. देन डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी होते हैं. डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू डिपार्टमेंटल हेड्स फॉर परचेजिंग ऑफ कमोडिटीज एंड फॉर ओवरसीइंग द सेल इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्टोर्स. डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा है जैसे मेगा मार्ट सब जो होते हैं जिसमें बहुत डिफरेंट वैरायटी की चीजें मिलती है. तो एक ही स्टोर होता है लेकिन उसमें डिफरेंट वैरायटीज की चीजों को बेचा जाता है, उसे हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं. तो ये कुछ स्टोर्स हैं. रिटेल ट्रेडिंग के देवांश मुझे 4 एग्जांपल बताइए रिटेल ट्रेडिंग के. वो प्लेसेस के नाम बताइए जहाँ पे रिटेल ट्रेडिंग की जाती है. अभी बताया ना स्टील. चलो अब ये थोड़ा सा टफ है, वैसे दे लेना इसको. सिट डाउन. आप बता सकती हैं किरण? हाँ. स्ट्रीट पैडलिंग, वेंडर्स, ट्रक्स, मेल ऑर्डर. ये एग्जाम में आया था कि मेल ऑर्डर देन डोर टू डोर सर्विस, ये किसके एग्जाम्पल है? ये आ चुका एग्जाम में. ठीक है, तो कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं, लाइन बाय लाइन सब इसको पढ़ लेना. नाउ अब जो भी है बचा हुआ है इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. टुमारो वी हैव क्लास ना, बट बिफोर दैट आई विल टेक योर अटेंडेंस.